سب کی خدمت میں مسیح کے نام میں سلام عرض کرتا ہوں۔ گلگت کی کلیسیا ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہتی ہے۔ ہم خدا کا فضل دیکھ کر حیران ہیں کہ وہ ناممکنات کا خدا ہے کہ یہاں پر چند سال پہلے مسیح کا کوئی مضبوط کام نہیں تھا، لیکن اس نے ایک معجزہ کیا کہ آج یہاں پر ایک زندہ کلیسیا ہے۔ اور ایسی کلیسیا جو نہ صرف خود پرستش کرتی ہے بلکہ بشارت کا کام کرتی ہے، مشن ورک کرتی ہے۔ اور یہاں سے آپ نے سکردو میں بھی خادم کو بھیجا اور وہاں پر بھی آپ خدا ان کی کلیسیا ہے۔ ہم آپ پر فخر کرتے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ خداوند مسیح نے ہمارے دل آپس میں جوڑ رکھے ہیں، اور فاصلہ تو بہت ہے کہ ہم لاہور میں ہوتے ہیں، آپ گلگت میں ہوتے ہیں، لیکن مسیح یسوع نے روح میں یہ فاصلے بھی کم کر دیے۔ اور مجھے پتہ نہیں اس میں کوئی خاص بات ہے، خدا نے اپنا خادم بخشا گلگت میں تو وہ بھی سجاد، اور سکردو میں کوئی بھیجا تو وہ بھی سجاد۔ اب مجھے نہیں پتا کہ تیسرا خادم وہ کیا ہوگا، تو ہم جانتے ہیں، روح میں محسوس کرتے ہیں کہ خداوند یہاں پر سینکڑوں ہزاروں خادم جو ہیں وہ پیدا کرے گا اور اس کا کام پھیل جائے گا۔ گلوری ٹو جیسس۔ اور ساتھ ہی ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کی کلیسیا کا آپ نے ہمیں بلایا، پاسٹر سجاد، میرا خیال کتنے سال ہو گئے؟ نہیں، آپ بلاتے ہوئے لاسٹ ٹائم when we were here 8 سال 8 سال ہو گئے۔ تو 8 سال سے وہ ہمیں کہہ رہے تھے، لیکن پتہ نہیں یہ کیسے 8 سال گزر گئے ہیں کہ ہم یہاں پر آئے نہیں ہیں، لیکن ہم انتہائی خوش ہیں آپ کی دعوت پر۔ آپ کے پاسبان کے لیے پاسٹر سلیم صادق جو ہمارے چیئرمین ہیں وہ بھی آئے ہیں، پاسٹر بشیر آئے ہیں، ان کی فیملی آئی ہے، پاسٹر پرویز کامران آئے ہیں۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہمارا ہی حصہ ہیں، ہم ان کے حصے ہیں۔ And we belong to the same body of Jesus Christ and serving the same Lord۔ تو آئیے پاک کلام دیکھیں۔ مجھے کہا تو گیا کہ یہ بشارتی میٹنگ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ تر ایمانداری بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں سیمینار کے بھی لوگ ہیں، لیکن آئیے جی سارے سیمینار اوکے، تو پھر پتہ نہیں بشارتی میسج کے لیے، لیکن آؤ ہم پاک کلام دیکھیں اور روح القدس کے الہام سے جو باتیں ہم پڑھیں گے ان پر غور کیجیے، اور اس میسج میں جو ہم پڑھیں گے خاص بات خدا کے رحم اور اس کی محبت ہمارے لیے کتنی عظیم ہے اور کتنے بڑے عجوبے سر انجام دیتی ہے، اس بات پر غور کیا جائے۔ افسیوں 2 باب پہلی 10 آیات ہم پڑھنا چاہیں گے۔ افسیوں 2 باب پہلی آیت سے لکھا ہے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا، ہیلیلویا، جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب
پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر یعنی نیچرلی غضب کے فرزند تھے۔ مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا، یعنی جلا بخشی، ہمیں زندہ کر دیا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ غور کریں اس بات پر کہ خداوند نے ہمارے ساتھ کار کیا دیا ہے، اور پھر لکھا ہے تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ جو نجات ہمیں ملی ہے یہ ہمارے اعمال کے سبب سے نہیں، لکھا ہے یہ خدا کی بخشش ہے، اٹس اے گفٹ آف گاڈ۔ اور 10ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر اس پیسج کے 2 حصے ہیں۔ ایک ہمارے ماضی پر روشنی ڈالتا ہے کہ ہم کیا تھے جب مسیح میں نہیں تھے، اور وہ لوگ بھی جو آج مسیح میں نہیں ہیں وہ کیا ہیں، اور مسیح میں آنے کے بعد جب خدا کے رحم اور محبت اور فضل کا ہمیں تجربہ ہو گیا تو ہم کیا بن گئے۔ یہ دونوں باتیں بڑے واضح طور پر کلام کے اس حصے میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو 5 باتیں میں نے درج کی اپنے ماضی کے بارے میں، ایمانداروں کا ماضی، اور وہ پہلی بات کہ ہم مردہ تھے، we were dead، غور کیجئے، اور دوسری بات ہم دنیا کی روش پر چلنے والے لوگ تھے، ڈائریکشن لیس تھے، بے سمت تھے، کوئی منزل نہیں تھی، کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی زندگی میں معنی نہیں تھے، ہمارے پاس کوئی امید نہیں تھی، لیکن خدا نے ہم پر رحم کیا۔ اور پھر ہم نے پڑھا ہے کہ ہم ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے، یعنی بہت حد تک ہم بدروحوں کے اثر کے نیچے تھے، ہماری زندگی پر کنٹرول تھا تاریکی کا۔ اور چوتھی بات، ہم اپنی جسم کی خواہشوں کے غلام تھے، ہم شہوت پرست تھے، ہم آزاد نہیں تھے، اور یہ چیز ہمیں ہلاک کر رہی تھی، ہمیں مار رہی تھی۔ اور 5ویں بات، ہولناک بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے، ہم پر خدا کی برکت نہیں بلکہ غضب تھا،
یہ ہماری کنڈیشن لکھی ہوئی ہے، اور یہ دنیا کی آج صورتحال ہے، اور ہر اس شخص کی جو مسیح یسوع کے بغیر ہے۔ خاص بات، خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم مردہ تھے، اپنے قصوروں، اپنے گناہوں، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم خدا سے الگ تھے۔ موت کا ذکر آیا ہے تو موت 3 قسم کی ہے، پاک کلام ہمیں بتاتا ہے۔ ایک موت جس سے ہم سب واقف ہیں، اور وہ جسمانی موت ہے، فزیکل ڈیتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس شخص سے اس کی روح وہ جدا ہو گئی ہے، سیپریٹ ہو گئی، الگ ہو جاتا ہے، اب وہ صرف باڈی رہ گئی ہے، لاش رہ گئی ہے۔ اس چیز کا نام موت ہے، اور یہ سب پر آتی ہے اور سب پر آئے گی۔ کسی کے کوئی علم نہیں کہ یہ کب یہ حدیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ایک پیریڈ دیا گیا ہے جب ہم جسمانی موت کا تجربہ کریں گے۔ دوسری ایک اور موت ہے، اور اس کو روحانی موت کہا جا سکتا ہے، اسپرچول ڈیتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس روح ہے لیکن وہ ڈیڈ ہے۔ ہم خدا کے بارے میں، زندہ خدا کے بارے میں بالکل کسی قسم کا کوئی احساس تک نہیں رکھتے، بے حس ہو چکے ہیں۔ یہ اسپرچول ڈیتھ ہے، یعنی روح کا خدا سے الگ ہو جانا یا الگ رہنا، اور نیچرل زندگی گزارنا، فیلنگز کے مطابق گزارنا، عقل کے مطابق گزارنا، یعنی شخصیت، سولش لائف۔ اس میں اسپرچول زندگی نہیں، روح القدس کی زندگی نہیں۔ اور پاک کلام کہتا ہے، رومیوں کا خط 3 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ انسانوں میں ویسے تو بڑے ہی فرق ہے، رنگوں کے ہی فرق ہے، تعلیم کے فرق ہے، کلچرز کے فرق ہے، بڑے ہی فرق ہے، لیکن ایک چیز جس میں سارے انسان ایک ہی جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ پاک کلام کہتا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ جب وہ نجات کے حوالے سے خدا کے سامنے سب کھڑے ہوتے ہیں، امیر بھی، غریب بھی، ان پڑھ بھی، پڑھا لکھا بھی، کالا بھی، گورا بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، اگر وہ مسیح میں نہیں ہے، اس کا سوشل سٹیٹس کسی قسم کا ہو، خدا کے سامنے ان میں کچھ فرق نہیں ہے، اس لیے کہ سب کے سب گناہگار ہیں اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، سب ایک جیسے ہیں۔ اور پھر تیسری موت جس کا ذکر پاک کلام میں ملتا ہے، ابدی موت، اٹرنل ڈیتھ۔ اور یہ پاک کلام اس کے بارے بتاتا، 2 تھسلونیکیوں 1 باب اس کی 9 آیت، وہاں لکھا ہے وہ خداوند کے چہرے اور اس کی قدرت کے جلال سے دور ہو کر ابدی ہلاکت، ابدی ہلاکت، اٹرنل ڈیتھ کی سزا پائیں گے۔ یہ مسیح کی دوسری آمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ لوگ جو بے ایمان ہیں، جو انجیل کے دشمن ہیں، جو کلیسیا کو ستاتے ہیں، ایک دن آنے والا ہے، خداوند آنے والا ہے، اس کے چہرے کی تجلی سے، اس کی پاک روح کی قدرت سے یہ لوگ جو ہیں یہ دور ہٹ جائیں گے اور ابدی ہلاکت میں چلے جائیں گے، اور یہ خوفناک بات ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں مختلف لفظوں میں یہی بات لکھی ہوئی ہے، 20 باب میں غالباً 14 اور 15 آیت ہے، وہاں لکھا ہے پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے۔ کلام میں ابدی موت کو دوسری موت بھی کہا گیا ہے،
और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। और ये वो मौत है जो खुदा से हमेशा 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 के लिए जुदाई है और इसका कोई आखिर नहीं है। और ये अबदी मौत, अबदी हलाकत दूसरी मौत है। हम मुर्दा थे, हम जिस्म की ख्वाहिशों के गुलाम थे। ये दिस इज हू वी वर, ये हम थे, ये हमारी सूरत हाल थी और हमारे लिए कोई नो वे आउट। इंसान ने इस हालत से निकलने के लिए बड़े रास्ते इख्तियार कर रखे हैं और उनमें सबसे बड़ा रास्ता मजहब का रास्ता है। लेकिन मजहब की रस्में, हमारी नेकियां, हमारे अमाल हमें किसी तरह भी रास्तबाज नहीं ठहरा सकते, निजात नहीं दे सकते। एक काम लिखा हुआ है और वो 4थी आयत में है, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सामने एक रास्ता निकाला हमें निजात देने का, जिंदगी देने का, और वो ये है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुदावंद का रास्ता है। और लिखा है उसकी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब हम कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। हालेलुया। दिस इज व्हाट जीसस डिड। और ना सिर्फ जिंदा किया, एक और काम कर दिया, हमें मसीह यीशु में शामिल कर दिया। ये कैसी शमूलियत, कैसी रिफाकत, कैसी शराकत। बादशाहों के बादशाह जलाली खुदावंद में हमको, ईमान लाने वालों को, मसीह के मानने वालों को मसीह में शामिल कर दिया। और ना सिर्फ शामिल कर दिया बल्कि लिखा हुआ है हमें उसके साथ जिंदा किया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। कैसा काम खुदावंद ने अपनी मोहब्बत के साथ किया है। और ये हमारा यीशु है जिसकी बाबत अंजील बताती है इब्तिदा में कलाम था। गौर करो यीशु मसीह कौन था जिसके हम गीत गाते, जिसकी हम प्रस्तुत करते, जिसका प्रचार करते हैं। उसकी बाबत लिखा है इब्तिदा में कलाम था, यानी अज़ल से, अबद से, जब टाइम नहीं था, जब स्पेस नहीं था, जब कोई चीज नहीं थी, सिर्फ खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स था, इनके अलावा कुछ भी नहीं था। इब्तिदा में कलाम था और ये यीशु मसीह है। और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ, खुदा मुजस्सम हुआ। ये यीशु मसीह है। और लिखा है उसके वसीले से उसने सब चीजें पैदा की हैं और कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसके वसीले से या उसके बगैर पैदा हुई हो। सब चीजें यीशु मसीह के वसीले से, कलाम के वसीले से पैदा हुई हैं और वजूद रखती हैं और कायम हैं और काम कर रही हैं और बिल्कुल बेतरतीब नहीं होती हैं, इसलिए कि यीशु मसीह खुदा का कलाम है और उसमें कुदरत पाई जाती है। हम आए गिलगित में, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, कितने पावरफुल हैं। इंसान बड़े पहाड़ के आगे खड़ा हो जाए तो ऐसे लगता है जैसे कोई कीड़ा बैठा हुआ है। इतने पावरफुल समुंदर है, सितारे अरबों के हिसाब से कहकशाएं, हमारी जमीन सबसे छोटा सियारा, इससे कई गुना बड़े, करोड़ों गुना बड़े सितारे, सियारे, कहकशाएं, सूरज, बहुत कुछ इस सारी कायनात में मौजूद है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें यीशु नासरी जो कलाम है उसकी कुदरत से, उसके वसीले से। ये यीशु
यीशु सिर्फ एक आम शख्स नहीं है, यीशु मसीह खुदा है जो मुजस्सम हुआ, इंसान बना, जमीन पर रहा, पाक रहा, ना उसकी सोच में, ना नीयत में, ना कौल में, ना फेल में किसी किस्म का कोई गुनाह, कोई आलूदगी, कोई ऐसी चीज नहीं थी। एक ही शख्स है जो हिस्ट्री में हमेशा पाक है और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया, ये यीशु है। उसकी बाबत लिखा हुआ है, उसमें जिंदगी थी, हम मुर्दा थे, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी जो यीशु मसीह में थी वो आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है, मगर तारीकी ने उसे कबूल ना किया, मगर जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें कबूल करने वाले, ईमान रखने वाले, उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। तो मेरे अजीजों, जिंदगी यीशु मसीह में, जिंदगी और कहीं नहीं है, और जो मसीह में जिंदगी है वो अबदी जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है, गैर फानी जिंदगी है, जलाली जिंदगी है, मुबारक जिंदगी है, सुपीरियर जिंदगी है, अफजल जिंदगी है। वो हमारे अंदर जब हम ईमान ले आते हैं, मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, मसीह की जिंदगी रूह कुद्स की कुदरत से, ईमान रखने के वसीला से हमारे अंदर आ जाती है और वो जिंदगी हमारे अंदर और मसीह की फितरत आ जाती है। उस वक्त लोग ईमानदार कहलाते हैं। पहले भी जिंदगी थी हमारे अंदर, गुनाहगारों में भी जिंदगी है, लेकिन वो नेचुरल जिंदगी है, वो सोलिश जिंदगी है। ये जिंदगी 70 साल, 80 साल, 90 साल, खदाइमों के जान 100 साल, इसके बाद ये नेचुरल जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन खुदावंद की जिंदगी, मसीह की जिंदगी जो रूह कुद्स की जुम्मन से हमारे अंदर आती है, ये हमेशा 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 के लिए हमारे अंदर रहती है और कभी नहीं मरती, इसलिए कि खुदा की जिंदगी गैर फानी है और हम भी गैर फानी हो जाते हैं। ये कहते हैं खुदावंद की जिंदगी। हालेलुया। इसलिए मसीह ने कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी नहीं मरेगा, और जो अगरचे वो मर जाए, ये नेचुरल बॉडी ये हमारे साथ लगी हुई है, अगरचे ये मर जाए तो भी वो जिंदा रहेगा, इसलिए कि स्पिरिचुअल लाइफ हमारी रूह के अंदर जो आ चुकी है वो कभी फना नहीं होगी और वो हमेशा तक रहेगी और अब्दियत में खुदावंद की हजूरी में। और जब वो आ जाएगा फिर यही फानी बदन जो कब्र में होगा, गल सड़ गया होगा, हड्डियां नहीं मिल रही होंगी, पिस गए होंगे, गर्द बन चुकी होगी, राख बन चुकी होगी, लेकिन जब यही राख यीशु मसीह की आवाज सुनेगी, ललकार और नरसिंगे की आवाज जो जिंदगी है, जब वो राख आवाज सुनेगी तो एक गैर फानी बदन की शक्ल इख्तियार करके मुर्दों में से हालेलुया। ये वो जिंदगी है जो खुदावंद हमें बख्शता है, और हर उस शख्स को जो मसीह यीशु पर ईमान ले आता है। बड़े लोग खुदावंद मसीह की जिंदगी में आए, कईयों ने उसको छू लिया और जिंदगी के मब्बे में से जिंदगी उनके अंदर आ गई। एक औरत का तो बड़ा ही जिक्र हम पढ़ते हैं, बेचारी भीड़ों में से गिरती पड़ती कमजोर सी थी, लेकिन ईमान की कुदरत उसके अंदर थी। मैं पहुंच जाऊं मसीह के पास किसी तरह से, मैं उसकी पोशाक का किनारा छू। जिंदगी वहां भी बह रही, जिंदगी का मम्मा है,
उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। मैं इसको छू ही मैं शिफा पा जाऊंगी। उसके अंदर जो जिंदगी है वो नूर है, वो रोशनी है, वो मेरी तारीकी को, बीमारी को, गुनाहों को खत्म करके रख देगी। आई वॉन्ट टू रीच हिम। Oh, she managed it. पहुंच गई वहां पर और जाकर खुदावंद को छोड़ लिया। जब मैं टोटी खोल दी थी, ये जिंदगी थी, एकदम जिंदगी मसीह में से निकली और उस औरत की रूह के अंदर आ गई और वो शिफा पा गई। उसका खून बहना बंद हो गया। मसीह ने कहा, मुझे किसने छुआ? एक शागिर्द कहता है, खुदावंद छुआ तुझ पर तो लोग गिरे पड़ते हैं, इतनी भीड़ है, तो टच की बात कर। खुदावंद ने कहा नहीं, ये डिगना फर्क है, ये तो एवं डिगन डुगन है, लेकिन किसी ने मुझे छुआ है। ईमान और मोहब्बत के साथ मेरे अंदर से कुव्वत निकली है, जिंदगी निकली है। किसने मुझको छुआ है? यीशु मसीह जानता था, लेकिन वो उस औरत को पेश करना चाहता था, लुक एट दिस वुमन। और जितने इस औरत की तरह मसीह को छूते हैं वो जिंदगी पा जाते हैं। उनके अंदर हमेशा जिंदगी। वो औरत कांपती हुई, डरती हुई, बेचारी कभी भीड़ के सामने आई नहीं होगी। औरत उस मुआशरे में क्या होगी? जब सारे पराह हट गए तो कामती बेचारी मसीह के पास आई और कहने लगी, खुदावंद मैंने तुझको चुना है। खुदावंद भी हमारा कैसा मोहब्बत से भरा हुआ है। कहता, बेटी खौफ न कर। क्या तसल्ली उसको बड़ी, तेरे ईमान में तुझे शिफा बख्शी है। ये औरत रिकॉग्नाइज्ड हुई खुदावंद से और अपने घर में एक नई जिंदगी का आगाज कर दिया। आप में से भी अगर कोई ऐसा है इस औरत की तरह जिसके अंदर मौत है, बीमारी, गुनाह, तारीकी, खौफ, मसीह के बगैर गज़ब का फसंद है, रूहानी मुर्दा है, यीशु नासरी जिंदगी का मंबा, उसको छू दे, ईमान से आ जा, उसके अंदर अपना दिल उड़ेल दे, उसके हुजूर में उसको कह कि मैं ऐसा हूं। और जब तेरा कनेक्शन पाक रूह की कुदरत से, ईमान की ताकत से यीशु के साथ हो जाएगा तो जिंदगी का चश्मा तेरे अंदर आ जाएगा और तुझे फर्क का पता चल जाएगा और तू मसीह में शामिल हो जाएगा। कोड़ियों के साथ भी ऐसा है। आज तो जमाना बदल गया, हॉस्पिटल निकल आए हैं, कोड़ियों का भी इलाज करते हैं। उस वक्त ये लाइलाज बीमारी थी और लग जाने वाली बीमारी थी, इसलिए कोड़ियों के लिए ये कहा गया था कि ये बस्तियों से बाहर निकले। इनको मुर्दा समझा जाता था, इनको छोड़ दिया जाता था, ये अलग हो जाते थे, फैमिलियों से अलग, रिश्तेदारों से अलग। ये खौफनाक बीमारी का शिकार होते थे, लोग रोटी फेंक जाते थे और ये खा लेते थे। ये जिंदा ही मुर्दा थे, मौत इन पर हुकूमत कर इंतजार कर रहे थे। इनके अंदर कोई किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं होती थी। और ये 10 कोड़ी थे और लिखा हुआ एक उनमें सामरी था। ये तो सारे कोड़ी को जाई सन, एक भी चौकित हुआ तो जो कोड़ लगा हुए वो जाता पाता कितने जाती है कि सामरी है, ते फलाना है, ते ढींगड़ा है, और लिखा है वो सारे 10 कोड़ी थे। कुछ फर्क नहीं, सब ने गुनाह किया, सबको गुनाह का कोड़ लगा हुआ है और सब खुदा के जलाल से महरूम है। लेकिन इन कोड़ियों की जिंदगी में यीशु नासरी आ निकला और यहाँ पर मौत और कोड़ था, जिंदगी का मंबा मसीह की सूरत में इनके रास्तों में आ गया और दूर ही खड़े होकर पुकारने लगे, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। यीशु मसीह रहम करने वाला है और कहता है, जाओ अपने दई कहने को दिखाओ उसके कलाम की कुदरत से। जब ये जा ही रहे थे, कलाम सरायत कर रहा था। क्या पावरफुल कलाम है।
तो सब ने देखा कि हम तो शिफा पा गए। एक कोड़ी ओथे ही रोक गया, ते यूटर्न, और वो सामरी था। इसलिए लिखा हुआ है कि ये सामरी था और इनको रद्द कर दिया गया था, इनको नीच समझा जाता था, यहूदी इनको कबूल नहीं करते थे। ये सामरी था, उन्हें समझाना कहना तो मैं निपट लूंगा फिर, लेकिन मैं चाहता हूं जिंदगी के चश्मे के पास वापस, मैं वहां जाता। ये सामरी घोड़ी उन तमाम लोगों से मुख्तलिफ है जो शिफाओं के पीछे भागते लेकिन शाफी से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन ये कोड़ी ऐसा था जिसने शिफा भी पाई और शाफी के पास वापस आ गया, और शाफी वहां पर खड़ा था। He never moved। और ये चला जाता है उधर, और लिखा हुआ है उसके पांव के आगे गिर गया और शुक्रगुजारी करने लगा। इसका ठीक तर्जुमा है He kept on thanking Jesus। ये शुक्रगुजारी करता ही रहा। काश उस वक्त भी इस तरह की कोई वीडियो होती, आज हम देखते कि वो कोड़ी जो शिफा पा गया था, पास्टर बशीर को शुक्र कैसे कर रहा था। क्या सीन है, कैसे आंसुओं के साथ, खुशी के साथ उसके पांव छूता होगा, पकड़ता होगा, शुक्रिया अदा करता होगा। और यीशु नासरी को इसने छू लिया और यीशु कहने लगा, क्या दुश्मन पाक साफ नहीं हुए थे? यस, फिर वो नौका है। क्या इस परदेसी के सिवा, इसको आज भी समझा जाता था, कोई और ना निकला जो आकर खुदा की तमजीद करता। और फिर खुदावंद ने उस, मैं गौर कर रहा था, जितने जितने इस पैसेज लफ्ज पाक साफ ना हुए थे, शिफा पा गया, फर्क फर्क लफ्ज लिखे हुए हैं ग्रीक ज़ुबान में। फिर मसीह ने इसको कहा, वो लफ्ज है कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। और लफ्ज जो अच्छा लिखा हुआ है वहां पर रूट वर्ड सोसो है, जिसका मतलब है नजात, जिसका मतलब है रूह, जान, जिस्म की मुकम्मल शिफा। ये शख्स वापस आने वाला, शुक्रगुजारी करने वाला, शाफी के साथ रिश्ता कायम करने वाला, ये मुकम्मल शिफा पाकर अपने घर में गया। वो लोग सिर्फ जिस्म की शिफा पाकर घर गए, लेकिन ये शख्स शुक्रगुजारी करने वाला, रूह की शिफा, गुनाहों की माफी, अंदर का कोड भी जो गुनाहों का कोड है वो भी जिंदगी के चश्मे के पास आ गया और उससे साफ होकर वापस चला गया। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, यीशु नासरी जिंदगी का मौका है, वो जिंदगी बख्शता है। अगर आज कोई ऐसा है जो कोड के अंदर, गुनाह के अंदर शावतों का कोड, बदकारियों का कोड, खौफ का कोड उसको खाया जा रहा है, एक निजात दहिंदा है यीशु मसीह, जो अंदर के कोड भी बाहर के कोड भी साफ करके रख देता है और जिंदगी बख्शता है। ऐसा खुदावंद ने हमारे साथ किया है। हम उस एक कीड़े की मानद है। एक वाकया हुआ है, जो वाकया किसी जगह पर आग लगी हुई थी और आग चारों तरफ जैसे कोई दायरा नहीं होता, इस तरह लगी हुई थी और शोले भड़क रहे थे और उनके अंदर एक कीड़ा आ गया था। एक शख्स देख रहा था, वो कीड़ा इस आग में से निकलने की कोशिश कर रहा, इधर जाता था भाग आ जाती थी, फिर इधर आ जाता था और भाग आ जाती थी, चारों तरफ आग भड़क रही थी। उस शख्स को राम आया उस कीड़े पर और उसने बहुत बड़ी लकड़ी ली और दायरे के अंदर रख दी। जहां पर कीड़ा था वो कीड़ा इस लकड़ी पर चढ़ गया और वो उस पर रेंगता हुआ बाहर आ गया और आग में से निकल आया। खुदा ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया है, जो गुनाहों की आग में फंसे हुए थे, लेकिन खुदा ने एक लकड़ी यीशु की सलीब इस दुनिया के अंदर जो गुनाहों की आग में फंसी हुई थी, इसमें से निकालने के लिए सलीब एक रास्ता है जिसको गुनाहगार थाम कर इस आग में से निकल आता है और निजात देता है।
यीशु नासरी की सलीब, जहां उसने हमारे गुनाह उठा लिए, हमारी दोस्त, हमारी लानतें, हमारे कोड, हमारे खौफ, हमारे बोझ, हमारे गुनाह यीशु ने खुद उठा लिए। वो गुनाह बन गया ताकि जो कोई मसीह पर ईमान लाता है वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो क्या आज शाम मेरे अजीजों, आप में से कोई ऐसा है जो समझता हो कि मैं इस कोड़ी की तरह हूं, मैं उस औरत की तरह हूं, मैं उस कीड़े की तरह हूं, मैं निकल नहीं सकता, लेकिन तेरे लिए एक उम्मीद है और वो यीशु नासरी की सलीब है जो मुर्दों में से जी उठा। आज वो तुझे बुलाता है और पुकारता है और तुझे जिंदा करेगा और अपने साथ आसमानी मुकामों पर बिठा लेगा। फिर एक और बड़ी खूबसूरत बात इस पैसेज में लिखी हुई है और वो ये है 10वीं आयत में, हम उसी की कारीगरी हैं। We are only his workmanship। कारीगरी के लिए ग्रीक वर्ड है पोएमा, जिससे इंग्लिश लफ्ज पोएम, नस्म, शायरी, तख्लीक, खुदा की क्रिएटिविटी, और इसका मतलब है पोएमा का मास्टरपीस ऑफ गॉड्स क्रिएटिविटी। खुदा की तख्लीक का शाहकार हर वो शख्स है जो मसीह यीशु में है। हम उसी की कारीगरी हैं, हमें बनाया गया है। खुदा ने अपनी तख्लीक की कुदरतों से हमें पैदा किया है। और फिर हम इस आयत में पढ़ते हैं, और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए, उन नेक अमाल के लिए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। मसीह यीशु में हम मखलूक हुए, हमें निजात मिली। इसका एक मकसद था, वो मकसद यह था कि हम उन कामों में बिजी हो जाएं, मसरूफ हो जाएं जो खुदा ने असल ही से मसीह में हमारे करने के लिए तैयार किए हुए थे। यानी खुदा का हमारे लिए एक मंसूबा है, उसका एक मकसद है। ईमानदार वो एक ऐसा शख्स है जिसमें खुदा के मंसूबे मौजूद हैं, और उन मंसूबों को डिस्कवर करना, दरियाफ्त करना, उनका पता चलाना बाइबल स्टडी के जरिए, दुआ के जरिए, फेलोशिप के जरिए, खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारने के जरिए से, उसकी रूह, उसकी आवाज सुनने के वसीला से वो स्टेप बाय स्टेप अपने मंसूबों को हम पर जाहिर करता रहता है और हम उनमें चलते रहते हैं। और हमेशा की जिंदगी उन मंसूबों और उन कामों में चलने का दूसरा नाम है। ईमानदारों के लिए चैलेंज ये है, क्या मैं जो कुछ कर रहा हूं, जो मैं काम कर रहा हूं, क्या वो खुदा के मंसूबे के मुताबिक है? क्या मैं अपनी जिंदगी को ज़ाया कर रहा हूं? ऐसा हो सकता है कि हम निजात भी पा जाए लेकिन काम हम अपने कर रहे हैं, लेकिन हमें इसलिए मसीह में पैदा किया गया है कि हम वो काम करें जो खुदा ने हमारे लिए असल से, हमारी पैदाइश से भी पहले करने के लिए तैयार कर रखे थे। क्या आज हम उन कामों में इन्वॉल्व हैं? हम कहते रहते हैं खुदा तो बड़ी लंबी उम्र करे, खुदा करे ऐसा ही हो, लेकिन आप बड़ी लंबी उम्र में करना क्या चाहते हैं? What do you want? ले लीजिए लंबी उम्र, but what for? किस मकसद के लिए? ऐसे लोग भी गुजरे जिनकी लंबी उम्र तो नहीं थी, लेकिन थोड़ी उम्र में ऐसे काम कर गए जो खुदा की तरफ से थे। आज भी पुश्तें उनका नाम लेती। उनमें एक शख्स हेनरी मार्टिन है, नाम सुना? किस किस ने सुना? यस, कईयों ने नहीं सुना। हेनरी मार्टिन एक मिशनरी था जो पाकिस्तान में आया।
اس وقت سارا انڈیا ہی تھا. یہ شخص اگر مجھے ٹھیک یاد رہے 31 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تھا. کتنے سال؟ اس نے صرف 6 سال مشن فیلڈ میں انڈیا میں خدمت کی تھی. Only 6